Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, शुक्रिया। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark domestic stocks log gains for the fourth session in a row. Sensex closes at 36,725. Nifty ends at 11,058. Rupee appreciates 27 paise against the US dollar and Brent crude prices firm to trade around $67 per barrel. प्रमुख घरेलू सूचकांक लगातार चौथे सत्र बढ़त ने सेंसेक्स 36,725 पर और निफ्टी 11,058 पर बंद हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 27 पैसे की मजबूती में रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $67 प्रति बैरल के आसपास बना रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। लगातार चौथे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग 89 अंक बढ़कर 36,725 पर बंद हुआ। रुपए में मजबूती और विदेशी फंडों का प्रवाह जारी रहने के बीच हुए उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद सेंसेक्स में ये बढ़त आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 5 अंक बढ़कर 11,058 पर बंद हुआ। लेकिन व्यापक बाजार की बात करें तो यहां आज गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.34% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.11% का नुकसान दर्ज हुआ। Rising for the fourth straight session, the BSE benchmark Sensex today climbed almost 89 points to close at 36,725 in choppy trade amid a strengthening rupee and sustained foreign fund inflows. Similarly, the NSE Nifty edged higher by 5 points to close at 11,058. Among secondary barometers, the BSE mid-cap index fell 0.34% and the small-cap index fell 0.11%. The market breadth indicating the overall health of the market was negative. On the BSE, 1,309 shares rose and 1,349 shares fell. A total of 161 shares were unchanged. Among the Sensex constituents, Larsen & Toubro emerged as the top performer with a gain of 2.8%. Other gainers in the 30-share Sensex pack were Mahindra & Mahindra, Axis Bank, ITC, SBI, HDFC Power Grid, Tata Motors, TCS, Tata Steel and Reliance rising up to 1.8%. On the other hand, Coal India, Sun Pharma, NTPC, ONGC and Yes Bank were among the major laggards, declining up to 3.1%. Other losers were Vedanta, Infosys, Hero MotoCorp, Bajaj Finance, HCL Tech, Bajaj Auto, Maruti, ICICI Bank, HDFC, Kotak Bank, Axis Bank, Bharti Airtel and Asian Paints. Of this 30 Sensex scripts, 12 ended with gains while 18 saw losses. Among the sectoral indices on the BSE, capital goods ended up 1.5%, FMCG up 0.5% and industrials added 0.8%, while realty closed down with 0.7%, healthcare down 0.9% and IT ended down with 0.7%. Dr. Sharma, how do you view this market fundamentally, because we are seeing a strengthening rupee and sustained foreign fund inflows which have influenced the rise in the Sensex. So how do you view the market, not just today but in the coming days also? Yes, markets are very steady at this juncture because of so many factors, global and domestic factors. Like in the global marketplace, global economy is now showing some signs of stabilization after some trade war between China and US and again some deceleration in the financial markets, then stabilization of the thought processes between the two economies. So now global economic environment is almost stabilized at this juncture, because now consolidation of growth is also there. Global growth is projected at around 3.4% for the current year, which is lower than the last year. So going forward, fundamentals for the Indian economy are very, very strong, and market dynamism is also positive, and markets are steady despite so many factors.
So I believe in the coming times also markets will remain dynamic, though upside is not that much higher like anticipated at the higher and higher level, but markets will remain range bound with the dynamic developments on the daily basis. So I believe upper side would be at around 11,300 and lower side at around 10,300. This is the broad trajectory of the Indian markets right now. In the next many weeks, we can anticipate that markets will remain range bound in the 1,000 points for the Nifty. But there is no major upside or a major downside because fundamentals of the economy are supporting and markets will remain steady. डॉक्टर शर्मा, आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स जो है इकोनॉमी के वो सपोर्टिव हैं। कौन से ऐसे की पैरामीटर्स हैं जिन पर बाजार की नजर टिकी हुई है और जो बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, फर्स्टली जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ पॉलिसी स्टिमुलस आए, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीछे जो 25 बेसिस पॉइंट का कट किया वो मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव रहा। और उसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के जरिए आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि एटलीस्ट जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो थोड़ी लिबरलाइज्ड रहेगी, कोई उसमें ऐसा कठिन जो कदम है नहीं उठाया जाएगा। और दूसरा, इन्फ्लेशन सपोर्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो लोअर ट्रैजेक्टरी में है। इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस भी आने वाले टाइम में बहुत ही बिनाइन है, बहुत ही अच्छी हैं। उसमें कोई ऐसा थ्रेट नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से इकोनॉमी को दोबारा से नुकसान होगा या फिर रिजर्व बैंक अपनी नीति जो है वो रेट कट करने की बजाय रेट बढ़ा देगा। ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है। और तीसरा, जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, चाहे भले ही थोड़ी सी स्लो डाउन अभी हमने देखा है सीएसओ के नंबर्स में, जो थर्ड क्वार्टर एस्टिमेट्स आए हैं वो 7% के आसपास कंसोलिडेट किया है इकोनॉमी ने, लेकिन आने वाले टाइम में जो आने वाला वित्त वर्ष है उसके लिए प्रोजेक्शंस उससे ज्यादा हायर हैं। एक तो जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है या फिर अंकटाड है, सभी के प्रोजेक्शंस इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छे हैं और वो 7% से ज्यादा ही हैं। और इन सब चीजों के मद्देनजर जो मार्केट्स हैं उनका जो रवैया है वो एक, चाहे वो बहुत तेजी से नहीं है लेकिन एक स्टेडी है कि मार्केट के जो सपोर्ट है जो वो एक बनी हुई है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो आईबीसी और एनसीएलटी इनके तहत बैंकों ने लगभग जो 1.43 लाख करोड़ के उनके बैड लोन्स थे उसमें से आधे रिकवर कर लिए हैं और बैंक रिकैपिटलाइजेशन भी लगातार सरकार कर रही है, आरबीआई सपोर्ट दे रही है बैंकों को। सो आपको बैंकिंग सेक्टर के क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जो स्थिति आज से 2 साल पहले थी वो उससे हम लगभग कहेंगे कि 50% हम इंप्रूव कर चुके हैं। जो सेंटीमेंट एक नेगेटिव हुआ था बैंकिंग सेक्टर के बारे में उससे हम टोटली चेंज हो चुके हैं। भले ही अभी एनपीए हैं लेकिन एनपीए में एक स्टेबलाइजेशन देखी गई है। एनपीए बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि एनपीए स्टेबलाइज होकर कम होने शुरू हो गए हैं। और दूसरा, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी स्ट्रिंजेंट जो नॉर्म्स आ गए थे, जो उसको चाहे हम पीसीए कहें या बैंक्स के ऊपर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस थे कि वो ज्यादा डिसबर्समेंट और उनके जो अपने लोन सिस्टम्स हैं, जो डिसबर्समेंट्स हैं, उनको अच्छे से परखना होगा। तो अभी थोड़ा सा ईज आउट हुए हैं कि ज्यादा उनमें डिसबर्समेंट्स की जो गति है वो तेज हुई है। उनको थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया है कि आप आगे जो लोगों को क्रेडिट है वो मुहैया करवाइए, जैसे कि सरकार की अनाउंसमेंट्स के साथ, जैसे 59 मिनट्स में लोन देने की बात कही गई है एमएसएमई को। तो उसी के नजरिए से जो बैंकिंग सेक्टर में एक ओवरऑल स्ट्रेंथ, जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो पीछे के कुछ महीनों में बना है, जो आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा। और जो रिकैपिटलाइजेशन की बात है उसके ऊपर तो जो इकोनॉमी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी हाई हैं कि रिकैपिटलाइजेशन के साथ बैंकिंग सेक्टर और मजबूत होगा और आने वाले टाइम में जो बनी हुई थी जो धारणाएं कि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही इम्पैक्ट हो गया है, एनपीएज बहुत बढ़ गए हैं, वो चीज थम गई है। एक वापस हमने वहां से रिकवरी शुरू हो गई है, हम ये कहेंगे। इस पॉजिटिव नोट पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया।
सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We're discussing about the performance of the Sensex and Nifty just before the break, and we're talking about the recapitalization of the banking system, where the majority of banks are owned by the government. Just on this factor alone, RBI has transferred a bulk of funds into this recapitalization process from its Sinaraj earnings, the money that's made by issuing notes and coins. How do you see that into all the PSU banks? Are we likely to see mergers and consolidation? And what are we likely to see in terms of valuation of these PSU banks? Because that is exactly what the traders are looking at when they look at the banking sector. Yes, that is a very positive note actually. At around 28,000 crore has been transferred to the government as a dividend from Reserve Bank of India. That is a very good move. I think that will increase the liquidity because during the last few quarters, a liquidity problem was there. That's why some people are saying that because of this liquidity squeeze, the economy was not able to attain its potential growth trajectory and growth remained at around 7%. So if the liquidity factor is addressed, then I believe the economy will again be in the higher mood and will attain its potential growth trajectory. Because with liquidity, the positivity in the markets becomes visible, and the banking sector is also in the smooth functioning. Today, I believe most of the PSUs and shares were in the positive trajectory because of this liquidity factor, because banks can disburse more with the ease of liquidity, and they can provide easier credit and lower rate of interest if the RBI cuts repo rate in the coming times by 25 or 50 basis point, which is a great room for Reserve Bank of India at this juncture with the lower inflation. So I believe if the liquidity factor is addressed and the economy is boosted by the economic fundamentals, then the banking sector is looking very lucrative at this juncture. डॉक्टर शर्मा, अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स की बात करें बाजार में, तो हालांकि आज उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, गिरावट आई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो आउट परफॉर्म कर रहे थे मेन इंडिसेस को. सो मिड कैप और स्मॉल कैप की अभी आपको क्या स्थिति दिखाई देती है? जो इतने सारे रिफॉर्म्स कर रही है सरकार, उनको टारगेट करके छोटी कंपनियों को, छोटे व्यापारों को, क्या उसका असर हम इन कंपनियों पर देख रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और एक इन्वेस्टर के लिए किस तरह से चयन करना चाहिए कंपनीज का? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में पीछे कुछ दिनों में काफी अच्छी तेजी रही है और काफी रिकवरी भी रही है. जो प्राइसेस पहले काफी डिक्लाइन किए थे वो रिकवर हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तो होती है. मार्केट्स में किसी भी जंक्चर पे मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, ना ही शेयर किसी एक डायरेक्शन में चलते हैं. कुछ देर के बाद उनमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और वापस फिर वो आगे चलना शुरू करते हैं. शायद ये उसी संदर्भ में एक प्रॉफिट बुकिंग है जो कई बार हम देखते हैं कि थोड़ी बिकवाली हुई है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग उसको हम कहेंगे. लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, जो पॉजिटिविटी है और जो उनकी रेजिलियंस है मिड कैप्स की, वो भी बनी हुई है. क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारी जो रिफॉर्म्स हैं, आई बिलीव 70-80% रिफॉर्म्स आर फॉर दी स्मॉल एंड मिड कैप्स. जो एमएसएमई सेक्टर है उसको सरकार ने अच्छे से फोकस किया है और बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर के लिए ही हुई हैं. खासकर जब डिमोनेटाइजेशन के बाद जब ये बात चली थी कि बहुत सारी जो लिक्विडिटी स्क्वीज हो गई है और जो छोटे मझोले कारोबारी हैं उनको इम्पैक्ट हुआ है, तो सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं उन चीज को वापस रिकवर करने के लिए. खासकर जो ये 59 मिनट्स में लोन देने की बात हुई है और जो मुद्रा योजना के तहत बहुत सारी डिसबर्समेंट्स हुई हैं, तो आई बिलीव के जो बहुत सारी जो प्लेथोरा ऑफ रिफॉर्म्स आया अभी की, जो मेजर जो रिफॉर्म्स थी उनके बाद जो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद जो प्लेथोरा ऑफ रिफॉर्म्स था, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को और भी स्ट्रेंथन किया है
और जो पोटेंशियल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जो हम एक ट्रेंड ग्रोथ रेट देख रहे थे, उससे ऊपर जाने की उम्मीद एक बनी है कि हम आने वाले टाइम में एक जो हायर एंड सस्टेन्ड ग्रोथ रेट हम हासिल करेंगे। और उसमें सबसे ज्यादा स्कोप जो है वो एमएसएमई और छोटे मझोले जो शेयर्स हैं उनका ज्यादा स्कोप बनता है। तो अब जैसा कह रहे हैं कि आउटलुक, जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो काफी हमारी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और जो अभी एक इलेक्शन का भी वो है, समय है, उस सबको देखते हुए जो हमने हाल में एक इन्फ्लो देखा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का वापस बाजार में लौटते हुए, एफआईआईज का, आपको लगता है कि वो अब सस्टेन्ड रहने की उम्मीद की जा सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अभी सभी इकोनॉमीज में, अगर हम टॉप 10 इकोनॉमीज को देखें, लीडिंग इकोनॉमीज, उनके जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, इंडिया उनमें सबसे बेस्ट है। चाहे वो इन्फ्लेशन में देखें हम, या एक्सपोर्ट में भी देखें। एक्सपोर्ट फिगर भले ही हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन 9-10% का जो ग्रोथ है, दिस इज हायर देन मैनी इकोनॉमीज। जो टॉप 10 अगर हम लीडिंग एक्सपोर्टर्स देखें, उनके मुकाबले में इंडिया का जो इकोनॉमिक जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है। और तीसरा, अगर डेट टू जीडीपी रेशो देखें, वो हमारी इंप्रूव हुई है। और खासकर जो पोस्ट लेमन क्राइसिस के बाद जो एक मोमेंटम बाद में इंडियन इकोनॉमी ने बनाया, वो हमारे ट्रेंड ग्रोथ रेट से ज्यादा था। प्री लेमन क्राइसिस में हम लगभग 7.1 के ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमारा ग्रोथ रेट जो है 7.3% रहा है, जो एक अच्छी बात है कि हमारा रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग है। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से हम बात करते हैं कि आउटलुक कैसे रहेगी, आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको इंडिया अभी बहुत सारी इकोनॉमीज में एक अच्छा ब्राइट स्पॉट, एक अच्छी उभरती हुई अर्थव्यवस्था और तेज गति से भागती हुई अर्थव्यवस्था नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाता है कि जब हम स्लो थे 1950s में, 70s में, फिर हम स्टेडी ग्रोथ में आए 70s में, 80s में, फिर हम स्ट्रांग हुए 90s में, 2000 में, फिर हम फास्ट हुए 2010s में, अभी हम पीछे के 5 साल में फास्टेस्ट हुए हैं। तो जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी है वो आगे इंप्रूव हो रही है इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्टर पीरियड में वॉलेटिलिटी रहती है कई बार, चाहे वो इलेक्शन की बात हो या फिर इलेक्शन रिजल्ट्स की बात हो या फिर इलेक्शन के पहले का समय हो, उस टाइम में बहुत ही न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स दिखाती हैं, लेकिन जो ओवरऑल सेंटीमेंट रहता है मार्केट्स का वो पॉजिटिव रहता है। डॉक्टर शर्मा, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, आपने एक्सपोर्ट्स मेंशन किया, जो यूएस ने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का जो फैसिलिटी है वो इंडिया से वापस खींच ली है, आपको लगता है कि ये अभी हमारी जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है भारत की, उसको देखते हुए एक फेयर फैसला है या अनफेयर फैसला है? क्या सरकार को कोई इसके अगेंस्ट WTO में या किसी और प्लेटफॉर्म पर आवाज उठानी चाहिए? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कोई ऐसा इम्पैक्ट करने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो इससे एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होगा वो $5-6 बिलियन बनता है, जिसमें हमारा, और हम एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो पॉजिटिव, यूएस के साथ बहुत ही पॉजिटिव रहा है और पॉजिटिव ही आगे चलेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट हम कम कर रहे हैं। और $5-6 बिलियन के जो जिनके ऊपर सैंक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगे। और दूसरा, मैं ये कहूंगा कि यूएस का जो चाइना की तरफ पहले ट्रेड वॉर का रुझान था, अब इंडिया की तरफ उन्होंने कुछ ऐसे, मैं समझता हूं कि इस टाइम पे यूएस एक कंफ्यूज्ड इकोनॉमी है, उसको जो भी वो बात कर रहे हैं वो शायद उनके ही हित में नहीं है, क्योंकि आइसोलेशन में देखें ना, उनका ट्रेड डेफिसिट 10 ईयर हाई पे आया है, उनका जो ट्रेड डेफिसिट अपना ही उनका इंक्रीज हुआ है, जबकि बहुत सारी इकोनॉमीज के ट्रेड डेफिसिट एड्रेस हो गए हैं, लेकिन यूएस के इतने ट्रेड वॉर्स और इतनी स्टेटमेंट्स के बावजूद भी यूएस इकोनॉमी जो है ट्रेड में स्टेबलाइज नहीं कर पाया है, लेकिन भारत को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। So preferential trade agreements are bilateral in nature, so you think it cannot be sorted out, but just looking at the macroeconomics, especially with the election season now on, how do you see the economy in the coming days? What should an investor be thinking right now in this 2 to 3 month period? Briefly. I don't see any major movement like investments because this is the pre-election period, and but all the parameters will remain steady. Like FDI, we attracted at around $62 billion FDI 17-18, but now the FDIs are steady. FDIs are not growing in a much higher trajectory.
So this steady system is also good for consolidation. So this is the election period. Now let the economy stabilize and consolidate to move forward in the next level, in the next orbit. So inflation is stabilizing. That is also good for the economy. And the economic growth rate at 7% despite so many factors, so many headwinds from the global economy, trade wars between China and USA, and so many reforms and structural reforms at the domestic level. Still we are more than 7% overall. So all these things are in a consolidation mode, and I think this is the year of consolidation. Going forward, we will enter in the higher mode and push our economy on high road. रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद. Invest in government bonds. A safe, long-term investment. Invest through the NSE GoBid mobile app. Minimum investment of just ₹10,000. Download the app today. मार्केट तंत्र में आपका फिर स्वागत है. एशियाई बाजारों की बात करें तो चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% की बढ़त में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की वृद्धि दर्ज हुई. गिरने वाले बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग 0.9% के नुकसान में रहा. जापान के निक्केई सूचकांक में 0.7% की गिरावट आई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.5% के नुकसान पर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां मंदी का रुख था. लंदन का फुटसी 0.4% के नुकसान में था. फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स प्रत्येक 0.5% की गिरावट पर थे. Dr. Sharma, you're talking about headwinds that India is facing because of the US not extending the preferential trade with India, the tariffs that India can enjoy, possibly withdrawing that. But looking at China, they have been facing these headwinds for a long time. How are their markets actually behaving, even though the markets have improved today? For instance, the composite index, Shanghai's, Singapore Straits Times added 0.2%, but the remainder of the markets fell by almost 1%. Because emerging and developing economies are actually comparatively resilient as compared with the advanced economies. So when the advanced economies are taking some stringent measures or some tough decisions like putting some sanctions on the developing economies or emerging economies like China and India in terms of increasing the tariffs, but ultimately they are in loss because sometimes the developing we are also the major buyers. We also import so many things from the US economy and from the other advanced economies, from Europe and from other advanced economies. So at this juncture, when the sanctions are increased or some stringent measures are taken by the advanced economies, then the developing economies also tilt towards their peer groups. Like if we compare our trade scenario with 1991 or 2001, most of the trade was earlier with the advanced economies. Now the trade is tilting towards the developing and emerging economies. Over 50% of trade is taking place with the emerging and developing economies in the Asian region majorly. And Africa is also a major market for us. So I believe putting sanctions by the advanced economies are not in favor of them. They are ultimately also the buyers of the cheap products from the developing and emerging economies. So if they are putting some sanctions, then we have also a great room to put some sanctions on their products in our markets. डॉक्टर शर्मा, एक स्लो डाउन की बात कही जा रही है. IMF ने कहा है कि ग्लोबल स्लो डाउन उन्होंने फिगर्स नीचे कर दिए हैं. चाइना और यूएस ने खुद अपने जो अनुमान थे उनको घटा दिया है. आपको क्या लगता है, ऐसे में भारत कहाँ स्टैंड करेगा? क्या हम इससे बच पाएंगे, या आपको लगता है कि भारत के फास्टेस्ट ग्रोथ रेट को देखते हुए जो FII इनफ्लोज हैं वो हमारी तरफ और आकर्षित होंगे? जी बिल्कुल, वही कारण है जो मैं अभी बता रहा था कि जो IMF के फिगर्स हैं, जो स्लो डाउन के इंडिकेशंस आए हैं, तो भारत उसके बावजूद भी, इन हेडविंड्स के बावजूद भी एक अच्छे ट्रैजेक्टरी में ग्रो कर रहा है. जो ग्रोथ रेट है वो 7% से अभी भी ज्यादा है. और जैसे मैंने बताया कि पोस्ट लेमन के बाद जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7.3% रहा है, जो अगर हम टॉप 10 लीडिंग इकोनॉमीज देखें तो किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इंक्रीज नहीं हुआ है. भारत एक 10 इकोनॉमीज में, टॉप 10 इकोनॉमीज में एक ऐसा देश है जिसने प्री लेमन क्राइसिस के बावजूद उसके बाद के 10 सालों में अपना ग्रोथ रेट इंक्रीज किया है इन ए लॉन्गर टर्म पीरियड ऑफ टाइम.
तो उसी वजह से जो हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की रेजिलियंस को देखते हुए, इंडिया के ग्रोथ पैटर्न को देखते हुए कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है वो और सस्टेन्ड और हायर ट्रैजेक्टरी अटेन करेगी, तो उसी के संदर्भ में वो इंडिया में अपना पैसा डाल रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। दिस इज नॉट एनफ फॉर द इंडियन इकोनॉमी। With a growth rate of more than 7%, we have potential to attract at least $100 billion in FDI every year. So, and that should happen in the next few years. Well, let's see what's happening in the U.S. markets now. Wall Street's main indices fell for a third session on yesterday, with the S&P 500 posting its biggest one-day decline in a month, as healthcare and energy shares slumped and investors sought reasons to buy after the market's strong rally to start the year. The Dow Jones Industrial Average lost 0.5%, S&P 500 declined 0.7%, and the Nasdaq Composite Index plunged 0.9%. There seems to be a trend of a falling market in the U.S. Do you think that they are making us face the headwinds? Do you think they're also facing headwinds now? Yes, they ultimately face the headwinds actually. They initiate the things, then ultimately they have to absorb the things and consolidate their thought process also. और अब चलते हैं करेंसी की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 27 पैसे मजबूत होकर 70 रुपए 1 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सत्र में ये 21 पैसे मजबूत होकर 70 रुपए 28 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था। 3 दिनों में 91 पैसे की मजबूती। आपका ब्रीफ कमेंट। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल्स की बात के ऊपर ही अर्थव्यवस्था निर्भर कर रही है, तो उसी तरीके से उसी संदर्भ में जब हमें लगता है कि जो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी या फिर न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी वो थम गई है, तो रूपी स्ट्रेंथन होना शुरू होता है। और कई बार ऐसी न्यूज आती है कि रूपी के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट होता है। ओवरऑल जो रूपी का ट्रैजेक्टरी है वो पॉजिटिव रहेगा और रूपी हम समझते हैं कि 70 और 72 के दरमियान आने वाले कुछ महीनों में स्टेबल रहेगा। इसी ट्रैजेक्टरी में रूपी के रहने की उम्मीद है। Let's see how the oil market is behaving now. Oil prices today rose on the back of ongoing OPEC-led supply cuts and U.S. sanctions against exporters Venezuela and Iran. But gains were capped by record U.S. crude output, rising inventories and falling estimates of global demand growth. Brent crude prices were trading around $66.90 per barrel, while WTI prices were at around $56.90 a barrel when reports last came in. Oil supplies up yet with the background of sanctions, yet prices are still stable. Yes, we discussed, I believe in our last discussion that crude prices are not expected to move faster or prices will remain below $65 per barrel in the next many months. So I think there is no worry from the crude sector. That is very much in a comfortable trajectory, and $60 is not a major worry for the Indian economy. You can absorb this. चलते हैं सराफा बाजार। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 360 रुपए सस्ता होकर 33,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। कमजोर वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं में सोने की मांग कम रही। रुपए में मजबूती का दबाव भी आज सोने के मूल्य पर दिखाई दिया। औद्योगिक इकाइयों और सिक्के बनाने वालों में चांदी की मांग कम हो जाने से चांदी भी 520 रुपए की गिरावट से 38,980 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क के बाजार में सोने का मूल्य कम होकर $1,284.77 प्रति आउंस पर आ गया। चांदी भी मंदी के साथ $15.06 प्रति आउंस दर्ज हुई। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप आए डॉक्टर शर्मा, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stocks log gains for the fourth session in a row. Sensex closes at 36,725. Nifty ends at 11,058. Rupee appreciates 27 paise against US dollar, and Brent crude prices firm to trade around $67 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.